سب سے پہلے بات کریں گے صدر مملکت ڈاکٹر عارف الوی کا چیف الیکشن کمشنر کے نام خط لکھا کہ آئین کے آرٹیکل 48(5) کے تحت الیکشن 6 نومبر کو ہونے چاہیے۔ صدر مملکت نے کہا کہ الیکشن کمیشن قومی اور صوبائی اسمبلی کے انتخابات ایک ہی دن کروانے کے لیے اعلیٰ عدلیہ سے رجوع کریں۔ صدر نے الیکشن کے لیے 6 نومبر کی تاریخ دی ہے۔ اسی حوالے سے یہ رپورٹ دیکھیے۔ صدر عارف الوی کا چیف الیکشن کمشنر سکندر سلطان راجہ کے نام خط، کہا آئین کے آرٹیکل 48 کی شق 5 کے تحت الیکشن 6 نومبر کو ہونے چاہیے۔ صدر مملکت نے خط میں کہا ہے کہ 9 اگست کو وزیر اعظم کے مشورے پر قومی اسمبلی کو تحلیل کیا۔ آرٹیکل 48 کی شق 5 کے تحت صدر مملکت کو اختیار ہے کہ 90 روز کے اندر تاریخ مقرر کریں۔ صدر مملکت نے چیف الیکشن کمشنر کو لکھا کہ عام انتخابات قومی اسمبلی کی تحلیل کے 89ویں دن یعنی پیر 6 نومبر کو ہو جانے چاہیے۔ آپ کو ملاقات کی دعوت دی تھی کہ مل کر آئین پر عمل درآمد کا طریقہ کار وضع کریں، لیکن آپ نے اس کے برعکس موقف اختیار کیا کہ آئین کے مطابق الیکشن کی تاریخ دینے کا اختیار الیکشن کمیشن کا ہے۔ صدر مملکت نے خط میں لکھا ہے کہ الیکشن کمیشن قومی اور صوبائی اسمبلیوں کے انتخابات ایک ہی دن کرانے کے لیے اعلیٰ عدلیہ سے رجوع کرے۔ صدر نے الیکشن کے لیے 6 نومبر کی تاریخ آرٹیکل 48 کی شق 5 کی تشریح کے تناظر میں کی۔ یاد رہے دنیا نیوز نے سب سے پہلے خبر کی ریت برقرار رکھی۔ اینکر پرسن کامران شاہد نے 11 ستمبر کو خبر دی تھی کہ صدر مملکت الیکشن کی تاریخ دینے والے ہیں۔ نگران وزرائے قانون نے کہا کہ انتخابات کی تاریخ کے اعلان کا واحد اختیار الیکشن کمیشن کا ہے اور ادارے انتخابی شیڈول کے تعین میں اس کے اختیار کا احترام کریں۔ مالی بوجھ سے بچنے کے لیے قومی 4 صوبائی اسمبلی کے انتخابات ایک ہی دن میں ہونے چاہیے۔ اسلام آباد سے یہ رپورٹ دیکھیے۔ نگران وفاقی وزیر قانون احمد عرفان اسلم کی زیر صدارت مشاورتی اجلاس، 4 صوبائی وزرائے قانون کی شرکت، قومی اور صوبائی اسمبلیوں کے آئندہ عام انتخابات سے متعلق امور پر تبادلہ خیال۔ اجلاس کے اعلامیے میں کہا گیا ہے کہ آئین کے مطابق عام انتخابات کے انعقاد اور انتخابات کی تاریخ کے اعلان کا واحد اختیار الیکشن کمیشن کا ہے۔ غیر ضروری مالی بوجھ سے بچنے کے لیے قومی و صوبائی اسمبلیوں کے انتخابات ایک ہی دن ہونے چاہیے۔ وزرائے قانون نے کہا کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان ایک آزاد آئینی ادارہ ہے۔ ریاست کے تمام اداروں کی ذمہ داری ہے کہ وہ الیکشن کمیشن کی خود مختاری اور اختیار کا احترام کریں۔ اعلامیے کے مطابق اجلاس میں آزادانہ، منصفانہ اور شفاف انتخابات کو یقینی بنانے کے حکومتی عزم کو اجاگر کیا گیا۔ وفاقی اور صوبائی حکومتیں جمہوری اور جامع انتخابی ماحول کو فروغ دینے کے لیے پرعزم ہیں۔ چیف جسٹس پاکستان عمر عطا بندیال نے کہا کہ آئین میں اسمبلی تحلیل ہونے کے 90 دن میں الیکشن کے انعقاد کا واضح حکم ہے، تو پھر کیوں بار بار اس معاملے پر تکرار ہوتی ہے؟ امید ہے 90 دنوں میں انتخابات کے فیصلے پر عمل درآمد ہوگا۔ ہمارے تمام ججز آزاد ہیں، عدلیہ کے آزاد ہونے کے بارے میں کسی کو شک نہیں ہونا چاہیے۔ سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کے صدر عابد زبیری کی جانب سے چیف جسٹس آف پاکستان عمر عطا بندیال کے اعزاز میں الوداعی عشائیہ دیا گیا۔ تقریب سے خطاب کرتے ہوئے چیف جسٹس عمر عطا بندیال نے کہا کہ آئین میں اسمبلی تحلیل ہونے کے 90 روز میں الیکشن کے انعقاد کا واضح حکم ہے، تو پھر کیوں بار بار اس معاملے پر تکرار ہوتی ہے؟ امید ہے 90 دنوں میں انتخابات کے فیصلے پر عمل درآمد ہوگا۔ انہوں نے کہا کہ ہماری کوشش تھی کہ زیر التوا کیسز کم کریں۔ 1 سال میں ہم نے 2000 کیسز کم کیے، مگر یہ اطمینان بخش کارکردگی نہیں۔ چیف جسٹس عمر عطا بندیال کی جانب سے مزید بھی کہا گیا کہ فیصلے کسی ایک فرد کے نہیں ہوتے، یہ ادارے کے ہوتے ہیں۔ جن ججز نے جرت کے ساتھ فیصلے دیے ان کو سراہتے ہیں۔ میں سپریم کورٹ بار، ہائی کورٹ بار سے کہتا ہوں، برائے مہربانی متحد رہیں۔ جسٹس عمر عطا بندیال نے کہا کہ ہم نے از خود نوٹس لینے سے اجتناب کیا۔ ہمارے تمام ججز آزاد ہیں، عدلیہ کے آزاد ہونے کے بارے میں کسی کو شک نہیں ہونا چاہیے۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو نے کہا کہ انہیں نہیں پتا الیکشن کب ہوں گے۔ عجیب بات ہے کہ ایک سیاسی جماعت کہہ رہی ہے فیبرری میں الیکشن ہے، الیکشن جلد سے جلد ہونے چاہیے۔ لیول پلینگ فیلڈ کی بات نہ کریں تو کیا کریں؟ مظفر گڑھ میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے بلاول بھٹو نے مزید کہا کہ انتخابی اتحاد کا فیصلہ سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی کرے گی۔ نہیں پتا کہ الیکشنز ہے، آپ کو نہیں پتا کہ الیکشنز کب ہے، الیکشن کمشنر صاحب کو نہیں پتا کہ الیکشنز کب ہے۔ بڑی عجیب بات ہے کہ ایک جماعت جو ہے وہ خود تو الیکشن ڈیٹ اعلان کر رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ فیبرری میں الیکشن ہے، تو میں پھر اگر لیول پلینگ فیلڈ کا بات نہ کروں تو کیا کروں؟ جہاں تک الیکشن کا اسٹریٹجی ہوگا وہ پاکستان پیپلز پارٹی کے سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی فیصلہ کرے گا۔ پیپلز پارٹی اور پی ڈی ایم کا الائنس کے تحت جو ہے ہم نے حکومت سنبھالا تھا۔ پاکستان پیپلز پارٹی اپنے وزارتیں کے جواب دہ ہیں۔
आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने दौरे तुर्किया के दौरान सदर रजब तैयब उर्दवान से मुलाकात की। सिपा सलार ने तुर्किया के वज़ीर ख़ारजा और दिफा बरी फ़िज़ाई अफ़वाज के कमांडरों से भी मुलाकातें की। तुर्क वज़ीर दिफा और कमांडर लैंड फोर्सेस ने पेशा वराना खिदमात के एतराफ़ में जनरल सैयद आसिम मुनीर को लेजेंड ऑफ मेरिट से भी नवाजा। इस्लामाबाद से ये रिपोर्ट। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की दौरे तुर्किया के दौरान सदर रजब तैयब उर्दवान से मुलाकात। सिपा सालार की तुर्क वज़ीर ख़ारजा और दिफा बरी फ़िज़ाई अफ़वाज और जनरल स्टाफ के कमांडरों से भी मुलाकातें। तुर्क वज़ीर दिफा और कमांडर लैंड फोर्सेस ने पेशावराना खिदमात के एतराफ़ में जनरल सैयद आसिम मुनीर को लेजेंड ऑफ मेरिट से नवाजा। ISPR का कहना है कि दौरे का मकसद दोनों बरादर ममालिक के माबैन फौजी और दिफाई ताउन को बढ़ाना है। आर्मी चीफ ने खित्ते में अमन व इस्तेहकाम बरकरार रखने के लिए तुर्क फौज की कोशिशों को सराहा और ऑपरेशनल तैयारियों के मयार की तारीफ की। तुर्क रहनुमाओं ने रवां साल फरवरी में तुर्किया में आने वाले ज़िलज़िले के दौरान पाकिस्तानी आर्मी इंजीनियर्स के पेशावराना खिदमात का भी एतराफ़ किया। आर्मी चीफ ने अनकरा में तुर्किया के अजीम रहनुमा मुस्तफ़ा कमाल अतातुर्क के मज़ार पर हाजिरी दी और फूल रखे। आर्मी चीफ की तुर्क लैंड फोर्सेस के हेडक्वार्टर्स आमद पर उनका पुरतपाक इस्तकबाल किया गया, जबकि चाक व चौबंद दस्ते ने उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया। इस मौका पर आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर का कहना था कि पाकिस्तान और तुर्किया के दरमियान ताल्लुकात मजबूत और बरादराना है जो हमेशा कायम रहेंगे। पाक फौज तुर्किया के बरी अफवाज को मुताद्दिद शोबों में मुकम्मल ताउन फराहम करने के लिए हमेशा तैयार है। पाकिस्तान हमेशा अपने तुर्क भाइयों के साथ मुसीबत और खुशी के लम्हात में खड़ा रहा है और दोनों ममालिक के दरमियान बरादराना ताल्लुकात को मजबूत करता रहेगा। हुकूमत के सामने सार्फिन को बिजली बिलों में रिलीफ देने के मामले पर मजीद मुश्किलात खड़ी हो गई हैं। IMF ने सख्त शराइत का तहरीरी मुआहिदा मांग लिया। कैप्टिव पावर प्रोड्यूसर से अमारात वापस लेने का भी मुतालिबा कर दिया। सार्फिन को बिजली बिलों में रिलीफ के लिए IMF ने सख्त शराइत रख दी। IMF का कैप्टिव पावर प्रोड्यूसर्स को दी गई मराहत वापस लेने का मुतालबा। कैप्टिव पावर प्रोड्यूसर्स का किबला दुरुस्त करने की हिदायत भी कर दी। IMF ने वजारत खजाना और वजारत तवानाई से 5 शराइत पर मबनी तहरीरी मुआहिदे का मुतालबा किया है। वजारत खजाना दस्तावेज के मुताबिक कैप्टिव पावर प्रोड्यूसर के लिए गैस निर्खों में जुलाई 2023 से इजाफे का मुतालबा भी किया गया है। ज़राए के मुताबिक वजारत खजाना ने रिलीफ ऐलान करने के लिए IMF शराइत पर अमल दरामद के लिए वक्त मांग लिया है। बिजली चोरों के गिर्द घेरा तंग, मुल्क भर में ग्रैंड ऑपरेशन जारी। सैकड़ों बिजली चोरों को हिरासत में ले लिया गया। 3000 से ज्यादा मुकदमात दर्ज। बिजली चोरों से करोड़ों रुपए की रिकवरी कर ली गई है। मुतादिद कनेक्शंस भी मुनक़ता कर दिए गए। पेशावर इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी की बिजली चोरों के खिलाफ कार्रवाइयां सुस्त रवि का शिकार हैं। लेस्को और मैपको की कारकर्दगी तसल्ली बख्श करार। डिवीजन और इंतजामिया की बिजली चोरों के खिलाफ कार्रवाइयां जारी हैं। मुल्क भर में 415 बिजली चोरों को गिरफ्तार कर लिया गया। बिजली चोरी में मुलव्वस अफराद के खिलाफ 3181 FIRs दर्ज करवाई गई। बिजली चोरों से मजमूई तौर पर 79 करोड़ रुपए से ज्यादा रिकवरी की गई। पेशावर इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी में कार्रवाई तमाम डिस्कोज के मुकाबले में सुस्त रवि का शिकार। लेस्को और मैपको की कारकर्दगी तसल्ली बख्श करार। रीजन में 265 बिजली चोरों को मजमूई तौर पर 2 करोड़ से ज्यादा जुर्माना आयद किया गया। 92 बिजली चोरों के खिलाफ मुकदमात का इंदराज करवाया गया। पाकपतन से 67 बिजली चोर पकड़े गए। 66 लाख के नादहिंदा ज़राई ट्यूबवेल्स के 8 ट्रांसफार्मर उतार लिए गए। बिजली चोरों को 42 लाख से ज्यादा के जुर्माने आयद किए गए। बहावलनगर में बिजली चोरी में मुलव्वस मजीद 73 मुल्जिमान के खिलाफ कार्रवाई की गई। 51 मुकदमा दर्ज करके 40 लाख से ज्यादा के जुर्माने आयद किए गए। सवाबी में नादहिंदगान से 14 लाख रुपए की रिकवरी करके 22 अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाए गए। जंग में 65 बिजली चोरों के खिलाफ कार्रवाई की गई। आरिफ वाला से 50 मकामा से बिजली चोरी पकड़कर 26 लाख की रिकवरी कर ली गई। सांगला हिल से 20 से ज्यादा सारिफीन बिजली चोरी करते पकड़े गए। साहिवाल में जारी ऑपरेशन के दौरान 19 लाख से ज्यादा की रिकवरी की गई। 198 मुकदमा दर्ज करवाकर 17 बिजली चोर गिरफ्तार किए गए। बात करेंगे पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस का 260 अरब रुपए कर्ज 2 साल के लिए मौखर किए जाने का इम्कान है। ज़राए के मुताबिक PIA के कर्ज को मौखर करने के लिए हुकूमती गारंटी फराहम की गई है। इस्लामाबाद से ये रिपोर्ट। PIA के लिए 260 अरब कर्ज 2 साल के लिए मौखर किए जाने का इम्कान। PIA का कर्ज मौखर करने के लिए हुकूमती गारंटी फराहम कर दी गई। वज़ारत खजाना ज़राए के मुताबिक अखराजात और माली ऑपरेशंस के लिए PIA को 14 अरब का नया कर्जा भी दिलवाया गया है, जबकि नया कर्ज मिलने के बाद PIA को टैक्स बकाया जात अदा करने की यकीन दहानी कराई गई है। खजाना डिवीजन के ज़राए के मुताबिक PIA ने वज़ारत खजाना से माली ऑपरेशंस के लिए 23 अरब रुपए मांगे थे। PIA ने फ्लाइट्स टिकट्स पर मिलने वाले फेडरल एक्साइज ड्यूटी भी अदा नहीं की थी। अब FBR को टैक्स अदायगियाँ की जाएगी। निगरान वजीर खजाना ने PIA में स्ट्रक्चर इस्लाहात के लिए प्लान भी तलब कर लिया है। PIA ने हुकूमती गारंटी की बिना पर मुख्तलिफ कमर्शियल बैंकों से कर्ज लिया हुआ है।
सरबराह पाक फ़िज़ाया एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर से जमहूरिया आज़रबाईजान के सफ़ीर की मुलाकात बाहमी दिलचस्पी के अमूर इलाकाई पेशरफ्त और उभरते हुए जोग्राफियाई और सियासी मंजरनामे समेत मुतादिद मौज़ूआत पर तबादला ख्याल किया गया। सरबराह पाक फ़िज़ाया का कहना था कि पाकिस्तान और आज़रबाईजान के माबैन रवाबित बाहमी तजुर्बात पायदार मजहबी सकाफती और तारीखी बुनियादों पर इस्तवार है। मुलाकात में दोनों ममालिक के माबैन दिफाई हवाबाजी के शोबों समेत दो तरफा अस्करी ताउन को फरोग देने के अज़्म का इयादा किया गया। आज़रबाईजान के सफ़ीर की पाक फ़िज़ाया की जानिब से मुनक़िद की जाने वाली बैनुल अक़वामी फ़िज़ाई मश्क में गहरी दिलचस्पी का इजहार किया गया। इस मौके पर जनाब खिज़र फरहदोफ ने कहा कि अमनो जंग और हर किस्म के हालात में पाक फ़िज़ाया के एहलकारों की तारीखी और पेशा वराना महारत काबिल तहसीन है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की सीनियर नायब सदर और चीफ ऑर्गेनाइजर मरीम नवाज से पाकिस्तान में ऑस्ट्रेलिया के हाई कमिश्नर नील हॉकिंस की मुलाकात। दो तरफा दिलचस्पी के अमूर पर तबादला ख्याल किया गया। पाकिस्तान में ऑस्ट्रेलिया के हाई कमिश्नर नील हॉकिंस की रायवर आमद पर मरीम नवाज ने इस्तकबाल किया। मरीम नवाज ने कहा कि पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान मुस्बत तामीरी और करीबी दोस्ताना ताल्लुकात खुशाइंद है। कुदरती आफत और हर मुश्किल में ऑस्ट्रेलिया की हुकूमत और अवाम ने पाकिस्तान का मुखलिसाना साथ दिया, जिस पर शुक्रिया अदा करते हैं। उन्होंने कहा कि तिजारत, सरमायाकारी, तालीम समेत मुख्तलिफ शोबों में ताल्लुकात को मज़ीद फ़रोग़ देंगे। ऑस्ट्रेलिया में मुक़ीम पाकिस्तानी भी दोनों ममालिक की दोस्ती को मज़ीद मजबूत बनाने में अहम किरदार अदा कर रहे हैं। मरीम नवाज ने ऑस्ट्रेलिया में ज़ेर तालीम पाकिस्तानी तालिब इल्मों को सहूलियात की फ़राहमी पर ऑस्ट्रेलियाई हुकूमत का शुक्रिया अदा किया। साइफर केस में चेयरमैन पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी के जुडिशल रिमांड में 26 सितंबर तक तौसी कर दी गई। खुसूसी अदालत ने एफआईए को 26 सितंबर तक चालान जमा करवाने की हिदायत भी कर दी है। चेयरमैन पीटीआई से मुतालिक केस की समाअत अटक जेल, जबकि शाह महमूद कुरैशी की समाअत जुडिशल कॉम्प्लेक्स इस्लामाबाद में हुई। अटक जेल में साइफर गुमशुदगी केस की समाअत चेयरमैन पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी के जुडिशल रिमांड में 26 सितंबर तक तौसी। खुसूसी अदालत की एफआईए को 26 सितंबर तक चालान जमा करवाने की हिदायत। साइफर गुमशुदगी केस की समाअत के लिए जज अबुल हसनात जुल्करनैन अटक जेल पहुंचे। चेयरमैन पीटीआई की 9 रुकनी वकला की टीम को भी ज़ाब्ते की कार्रवाई के बाद जेल जाने की इजाजत दी गई। समाअत के आगाज में चेयरमैन पीटीआई की हाजिरी लगाई गई। वकला और एफआईए के हुक्काम ने अदालत में दलाइल दिए। ज़राए के मुताबिक चेयरमैन पीटीआई ने जेल हालात को तसल्ली बख्श और सिक्योरिटी के लिहाज से खुद को जेल में महफूज करार दिया। अदालत ने चेयरमैन पीटीआई की इस्तदा पर बुशरा बीबी से मुलाकात का वक्त भी बढ़ा दिया। साइफर केस के मुलज़िम शाह महमूद कुरैशी को जुडिशल रिमांड मुकम्मल होने पर इस्लामाबाद जुडिशल कम्प्लेक्स में खुसूसी अदालत के रूबरू पेश किया गया। अदालती अमले ने जज अबुल हसनात जुल्करनैन के अटक जेल में समाअत से मुतालिक बताया। अदालत ने शाह महमूद कुरैशी के जुडिशल रिमांड में भी तौसीह कर दी।